और वही क्या हो रहा है। तो आज की वीडियो में हम Q&A डिस्कस करेंगे विच आई गेट फ्रॉम माई इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब की कमेंट्स। ठीक है, तो हम देखते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। कुछ क्वेश्चंस का आंसर मुझे भी नहीं पता होगा, बट लेट्स टेक दैट फर्दर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, हाय भैया, दिस इज फ्रॉम सूरज। हाय भैया, आई गॉट 60% इन क्लास 12th, एम आई एलिजिबल फॉर मैक्स स्कॉलरशिप? Unfortunately, for embassy recommendation, you are not eligible क्योंकि 70% मिनिमम इसमें लिखा हुआ है। बट मे बी यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन जो कि आई थिंक नवंबर दिसंबर में निकलती है, कीप एन आई ऑन दैट, क्योंकि उसमें शायद 60% 70% वाला क्राइटेरिया नहीं होता है, एंड मे बी यू कैन अप्लाई देयर एंड बी एलिजिबल। ठीक है, लेट्स सी। सेकंड क्वेश्चन इज फ्रॉम मानस चौहान। हेलो भैया, आई सॉ योर नेक्स्ट वीडियो ऑन यूट्यूब एंड आई वांटेड टू आस्क, आर देयर एनी गुड यूनिवर्सिटीज इन ties with it? Like, I want to pursue engineering, so are there any good colleges which I will get through next? Also, will there be any job security for it? देखो, पहली चीज़ है कि if you are a MEC scholar, that's a big and very popular thing in Japan. तो if you are a MEC scholar, then most of the universities are going to give you admission, क्योंकि सब admissions actually क्या होता है, हर यूनिवर्सिटी का एक MEC स्कॉलरशिप का भी और या फिर फॉरेन स्टूडेंट्स का भी कोटा होता है, दे हैव टू फिल इट। तो एक उनके लिए एज अ यूनिवर्सिटी, एज अ इंस्टीट्यूशन, दे हैव अ रिक्वायरमेंट टू गैदर द फॉरेन स्टूडेंट्स। ठीक है, तो बी इट टोक्यो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी टाइटेक या यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो, दैट्स अंडर टॉप 20, or Kyoto University, Waseda University, all of them will give you admission if you are a MEC scholar and if they have the seats, of course. ठीक है, अब this is Abir Sen Gupta. It's regarding the admission test. Okay, I need to give tests of Japanese, English and maths. Okay, however, I don't have any idea about maths since I didn't have any maths background in +2. And I am interested to learn Japanese, but I don't know that too as of yet. However, my English is strong. Can you please tell me what and how should I do to tackle the situation? ISC student, 85% scholarship chance. So I'm going to make another video on the test, the actual test, which is going to happen on 24th of June. So stick around with that. But yes, if your English is strong, you are clear for the English section. For maths, I think it will be from like 10th and 10+2 tak ki maths. To brush it up, I think you can just watch Khan sir's video. Khan Academy is what it's called, and there are multiple other YouTube, tutorials. Actually, you won't be solving very complex mathematical questions. It's just that you need to know the trick and do it within time. The first one is Japanese language. Most of us who would be in India would not know about Japanese language, except for those who have interest in anime. And of course, if you आप देखो किसी भी कंट्री की ना जो लैंग्वेज है दैट इम्प्रेसेस द मोस्ट, अगर आपको आती है तो आई थिंक दैट वुड बी द केस हेयर एज वेल। जापानीज लैंग्वेज जिसको आती है, जितनी भी आती है, दे विल हैव एन अपर हैंड इन द सिलेक्शन क्राइटेरिया। तो योर चांसेस मे बी राइट नाउ आर 1/3, but you can certainly work on maths if not Japanese language. Japanese language is hard to pick it up in such a small time, so I would say work on mathematics. मेरे बीटेक मुझे थोड़े बैक्स आए हैं और मैं मैक्स अप्लाई करना चाहता हूँ, बट मुझे थोड़ा समझ नहीं आ रहा मुझे अभी अप्लाई करना चाहिए. See, if you're getting graduated next year, then you better start applying right now. And if you have backs, then it's gonna be a problem because you have to submit transcripts and the degree at the time of your selection. So I would still say give it a try.
आपकी अगर परसेंटेज, अगर आपकी बैक्स आ रही हैं तो ऑफ कोर्स आपकी परसेंटेज इतनी अच्छी नहीं होगी, बट इफ़ इट इज़ अबव और 70% देन यू स्टार्ट अप्लाइंग नाउ, क्योंकि अगले साल के लिए। हाँ ओके, so planning to study in Japan, masters in aerospace engineering. So which exam should take, and can you guide me, sir? Okay, which exam should I take for masters to do in Japan? Basically there is one exam right now, which is the MEX application, which you fill, and then if you are shortlisted you will be giving the exam, which would have English, Japanese and mathematics. So if you clear the exam, you are inside, you will get the admission. Can you tell me from which university you have cleared your masters? That's Ritsumei Kan University, that's in Shiga. What specification you choose in your masters? That was information technology, but information science and engineering is also another word. Okay. Computer science graduate in English, yes. So in my university, Ritsumei Kan University, they offer English-based undergraduation courses as well. तो आप उसको भी देख सकते हैं. Most of the colleges only give English-based masters, but my university also has undergrad. So if you are interested, you can check out. Okay, how do we know if a professor at Ritsumei Kan University teaches in English? Tough question. As far as I know, that all the information technology ones, right, जो थोड़ी IT based हैं, all the professors that I've met, they are English based professors. The other thing which you can do is you can look at those schools or those subjects which are offered in English. Let's say Graduate School of Information Science and Engineering, this school is offered, this curriculum is in English as well. So look at the professors who will be teaching you the English parts. ठीक है, तो उससे आपको पता लग जाएगा कि अच्छा ये प्रोफेसर लोग इंग्लिश बेस में क्लास लेंगे, तो get it done. What time would be the best to contact the professor? I don't get this. I don't know when to do it, and I don't understand what research thing is, and also how to contact the professor. So I think ये मैं बहुत बार बता चुका हूँ कि how do you find the professors? You find the professors by going through your choice of university website. आप क्योट यूनिवर्सिटी का एग्जांपल लेते हैं, क्योट यूनिवर्सिटी में आप जाएंगे, ठीक है ना, उसकी गूगल पे आप डालो क्योट यूनिवर्सिटी, यू विल गेट द वेबसाइट, गो अंडर एजुकेशन, या फिर क्या होता है यार वो, आप उसमें एजुकेशन वाले टैब में जाएंगे, आप उसके अंदर यू विल हैव इंग्लिश बेस्ड ग्रेजुएट स्कूल कोर्सेज, उस पर आप क्लिक करोगे तो यू विल गेट अ लिस्ट ऑफ द करिकुलम और द सब्जेक्ट्स दैट आर देयर. आपको किस में करना है, राइट, कंप्यूटेशनल न्यूरो साइंस या फिर कंप्यूटर विजन, तो बेस्ड ऑन दैट यू विल हैव प्रोफेसर्स असाइंड टू दोज लैब्स. ठीक है ना, उस लैब के प्रोफेसर होते हैं लैब के अंदर. सो एवरी लैब हैज़ इट्स ओन पेज, होम पेज, जैसे एक अपनी वेबसाइट होगी. You click on the lab, go to that website, you will have the contact details of the professor, email ID. From there you get in touch with the professor. Side note, they also have their past research papers mentioned there, so make use of this information as well. ठीक है, बहुत important यार, because when you apply for your MEX, these research papers or these past research papers of the professors, they will help you a lot in determining your field of research, your interest and your वो जो 3 क्वेश्चन थे याद है ना, उनका आंसर they will determine. Okay, ठीक है. Right now I am in class 11 and our exam will end soon.
Okay, it would be great for me if you guide me through a MEC scholarship. भाई इसमें you will see MEC scholarship for undergrad again close to what, मतलब वो close to zero है, मतलब zero नहीं है, close to 12 है। 12 एप्लीकेशन है आपके पास, 12 ऑल ओवर इंडिया, तो बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। इफ़ यू आर एक्स्ट्रॉर्डनरी, क्वाइट एक्स्ट्रॉर्डनरी, फिल द एप्लीकेशन फॉर्म, अदरवाइज डोंट बॉदर। टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट विद यू सर, ये मैक्स की कितनी सीट होती हैं पता चलेगा? कहाँ पता चलेगा? जापान बेस्ट है क्या मास्टर्स के लिए? वेरी सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑफ कोर्स ऑफिशियल सोर्स ही नहीं बता रहा कि कितनी सीट्स हैं, तो मैं भी नहीं बता सकता। सेकेंडली, क्या मास्टर्स जापान में बेस्ट है? इसका आंसर आई थिंक लाइज इन द टाइप ऑफ मास्टर्स दैट यू वुड डू and the type of lab you would get. A lot of it depends on the professors. अगर आपकी lab अच्छी है, प्रोफेसर बहुत बेकार है, I mean, फिर आपका बेकार हो जाएगा। अगर आपका प्रोफेसर अच्छा है, then even though you're not in a really good university, अगर आपका प्रोफेसर अच्छा है तो आपकी मास्टर्स बहुत मस्त होने वाली है। उसमें भी क्या होता है, मास्टर्स में आपका काइंड ऑफ गारंटीड होता है कि रिसर्च पेपर आपको निकालना है, तो गारंटी वो नहीं देते, यू विल हैव टू गेट इट आउट। तो दैट डिपेंड्स ऑन द प्रोफेसर, ठीक है। बाकी जो हमारे जैसे इंडिया में होती है या फिर यूएस या कनाडा बेस्ड भी मैंने जो देखी हैं, करिकुलम बेस्ड होती हैं कि आपको क्लासेस दी जाएंगी विच हैपन्स इन जापान फॉर द फर्स्ट ईयर, और उसके बाद आप टेस्ट दोगे एंड ये चलेगा 2 साल के लिए, एंड देन यू गेट द डिग्री। इन द सेकेंड ईयर देयर इज नो क्लास। सेकेंड ईयर में यू प्योरली फोकस्ड ऑन योर रिसर्च, सो दैट इज अ गुड पॉइंट, ठीक है। Hello Aditya, I am currently in 3rd year of CS engineering and I am interested in AI ML for research. Should I fill the application form now or next year during my last semester, because I am planning to write a research paper and publishing it, but currently I have 2 years of teaching experience. My mark is up to 5th semester. 5th सेमेस्टर तक है ना आपकी, तो अगले साल तक आप 7th सेमेस्टर तक आ पाओगे, तो अभी आपके लिए सही सीन नहीं है। ये है विक्सर गेमिंग, तो नॉट रियली अभी आप मत करो अप्लाई, बिकॉज नेक्स्ट ईयर आप अप्लाई करोगे, यू विल हैव द फर्स्ट थिंग इज आपके पास व्हेन यू जॉइन योर मास्टर्स यू शुड हैव योर एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट एंड डिग्री सर्टिफिकेट फ्रॉम योर बैचलर्स। If you cannot get it by 30th of September 2024, then don't apply. Okay, bruh, Abhishek बोलते हैं, bruh, I took a drop for JEE exam, so what should I click for? What should I click for as a student or for others in application form, and current not into any college? अच्छा, student ही लिखो, because even if you took a drop for JEE, you're still a student. You were studying. You weren't doing any job. ठीक है? अच्छा, Aryan Bhatt, please make a video on how to fill the form. Arya. Deepanshu, I am doing MBA and I want to do STC and computer. Can I apply for next? Or am I not eligible? I'm sorry, STC in computer, I don't know what this is, so hopefully someone else can help. गोपाल कुमार सर, आपने जापानीज कैसे सीखी? स्टार्टिंग से एक वीडियो बनाइए, बहुत हेल्प होगी। ओके, मैंने जापानीज कैसे सीखी? देखो, जैसे आप कॉलेज में जाते हैं ना, मास्टर्स के लिए आप एनरोल करते हैं, बैचलर्स के लिए आप एनरोल करते हैं, तो वहाँ पे जापानीज़ क्लास की भी एक सब्जेक्ट होता है, तो आप वो ले लो। मैंने वो किया था, आई थिंक एक बार ही किया था, 1 सेमेस्टर। उसमें मुझे पता लग गया था कि मुझे ये जापानीज़ लैंग्वेज सीखने का इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं है। तो अभी भी मैं बहुत सर्वाइवल जापानीज़ बोलता हूँ, बट दैट इज़ हाउ यू स्टार्ट। और जो मेरा एक और फ्रेंड था जिसने जापानीज़ लैंग्वेज के बेस पे जॉब निकाली थी, वो बंदे ने he not only took all the classes, he took extra classes, of course, like free of cost,
which are offered by your prefectural सिटी हॉल्स. जैसे यहाँ पे भी है, हिरोशिमा में हूँ, तो हिरोशिमा में जो प्रिफेक्चर का एक मतलब सपोर्ट होता है ना, सपोर्ट सिस्टम, दे गिव जापानीज क्लासेस. तो आप वैसे ज्वाइन कर सकते हैं. एंड बट आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज you do self study. Not even masters will make you to a level or give you an education of such a level. That comes from self study. तो आप जापानीज लैंग्वेज भी खुद से पढ़ें. तो जैसे मैंने स्टार्ट किया था, गेंकी 1 और गेंकी 2 दो बुक्स हैं, उनसे स्टार्ट किया था. सो दैट क्लियर्स आउट योर N5 लेवल तक के लिए. यू डोंट नीड एनी एक्सटर्नल ट्रेनिंग और कोचिंग, वो आप खुद से निकाल सकते हैं. आई हैव सीन पीपल गोइंग अंटिल N4, कि N4 तक यू कैन मैनेज बाय योर ओन. फिर N3 से इट्स अ बिट टफ, तो आपको तब वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है कि आप एक्सटर्नल कोचिंग लें. बट अगर आप N4 निकाल दोगे ना, N3 आप खुद से निकाल दोगे. दैट्स माई गारंटी. ठीक है. सो हेलो, व्हाट आर द जॉब अपॉर्चुनिटीज आफ्टर कंप्लीशन ऑफ अंडरग्रेड स्टडीज थ्रू MEXT? विल आई be able to get a job in Japan or have to return back and find a job here? Please help. Okay. Let's say that you did your 4 years undergrad or 2 years masters from Japan, and now you are looking for a job now. तो इन केस ऑफ अंडरग्रेड जैसे हमारे यहाँ होता है, आप 3rd ईयर से जॉब अप्लाई करना स्टार्ट कर देंगे. एंड दे हैव अ वेरी फिक्स्ड प्रोसेस कि आप कब कब अप्लाई करेंगे. जैसे नवंबर से स्टार्ट हो जाता है, नवंबर दिसंबर से स्टार्ट हो जाता है फॉर द रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर अंडरग्रेड्स एंड न्यू कॉलेज ग्रेजुएट्स, NCGs. फॉर मास्टर्स, एज सुन एज यू डन विद योर फर्स्ट ईयर, यू विल स्टार्ट लुकिंग फॉर जॉब्स. आपके पास कोई और चॉइस नहीं है, आप देखना स्टार्ट कर देंगे. जॉब गारंटी जैसी कोई चीज़ नहीं होती, स्पेशली जापान में और ज़्यादा ट्रू है, क्योंकि यू गेट सम सपोर्ट इफ़ यू नो जापानीज़. अगर आपको जापानीज लैंग्वेज आती है, देन यू गेट सम मिनिमल सपोर्ट फ्रॉम करियर सेंटर इनसाइड द यूनिवर्सिटी. बट अगर आप फॉरेनर हैं, यू डोंट नो एनी जापानीज, देन यू आर लिटरली ऑन योर ओन. आपके ऊपर ही डिपेंड करता है. हाउएवर एफर्ट्स, आप जितने भी एफर्ट्स डालो, अगर आपको मिलनी है तो वो मिल जाएगी, नहीं मिलनी होगी तो नहीं मिलेगी. एंड I hate to say this, but it is at times it's luck based. It was, an unfortunate situation, and you were unlucky that you couldn't get a job, and it happens with many people. मेरे साथ के अगर मैं बात करूँ तो I think we were a group of 5 to 6 people. 3 of us got a job, 3 of us didn't get the ideal job. कोई वापस नहीं जाता. पहली बात क्या होता है कि आफ्टर यू कंप्लीट योर मास्टर्स, तो आपके पास 6 मंथ्स का एक्सटेंशन होता है. उस 6 मंथ्स के एक्सटेंशन को प्रूव करने के लिए यू हैव टू शो प्रूफ कि मैंने जॉब्स के लिए अप्लाई किया पर मेरा नहीं हुआ. दैट काउंट्स एज अ प्रूफ. यू नीड टू हैव सर्टेन अमाउंट ऑफ फंड्स इन योर अकाउंट टू सपोर्ट योरसेल्फ फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स. अब यहाँ पे मेरे पास एक एग्जांपल है जहाँ पे एक स्टूडेंट ने अपने सारे, MEXT स्कॉलर ने अपने सारे फंड्स ना उड़ा दिए थे इन यूजलेस थिंग्स, बाइंग गैजेट्स एंड ऑल दोज थिंग्स. अब आगे जाके देयर वर प्रॉब्लम्स कि भैया जॉब नहीं मिल रही, एंड दैट स्टूडेंट डजंट वांट्स टू गो बैक. अब इस केस में क्या करें? फॉर अप्लाइंग फॉर एक्सटेंशन फॉर योर वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा, यू नीड टू शो द फंड्स. तो उस केस में यू विल स्टार्ट आस्किंग फॉर फ्रॉम योर फ्रेंड्स कि मुझे भाई थोड़ा पैसा दे दो. आफ्टर आई शो द फंड्स, आई विल रिटर्न यू गाइस बैक. बट दैट्स हाउ जनरली इट इज. और बहुत मैंने देखा है कि अब ऐसा बोलना ही चाहिए, बट बहुत जो बिल्कुल भी नहीं पढ़ते उनकी भी कहीं ना कहीं जॉब लग जाती है. नॉट नेसेसरली IT जॉब, बट टीचिंग बेस्ड जॉब लग जाएगी या कोई भी ऐसी जॉब लग जाएगी. सो हार्डली पीपल गो बैक. लोग वापस नहीं जाते हैं इतना. एटलीस्ट दैट्स व्हाट आई हैव सीन. एक मेरा दोस्त था वियतनाम से, वो बंदा वापस गया था. आई डोंट नो व्हाई, बट एक ही एग्जांपल है मेरे पास, बाकी सब यही हैं. हेलो सर, आई एम प्लानिंग टू फिल माई MEXT स्कॉलरशिप फॉर मास्टर्स इन मैथमेटिक्स.
Do I need any kind of medical certificate or it's only for undergrad? You don't need any medical certificate. आपका टेस्ट होता है जब आप यहाँ पे आते हैं, जब आपके एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होती है, यू गो थ्रू अ मेडिकल टेस्ट, तो वो इस सब आपका यहाँ पे होगा। बाकी आप आई थिंक दैट वाज योर क्वेश्चन, आई डोंट नो। तो यहाँ पे हम वीडियो एंड करते हैं, काफ़ी लंबी हो गई है। आगे जो भी कमेंट्स आएंगे वी कैन डू अनदर Q&A राउंड, एंड ऑल द बेस्ट यू गाइस। मिलते हैं अगली बार, ठीक है।